یوسف پٹیل کے ڈرائنگ روم میں صرف ہم دونوں بیٹھے تھے۔ میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کی بمبئی سے بخیریت روانگی سے ایک طرف اگر اداس تھا تو دوسری طرف ذہنی طور پر اپنی ذمہ داری میں کمی کے باعث خود کو ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ یوسف کے دیے ہوئے اخبارات میرے ساتھ ہی تھے۔ میں انہیں پڑھنے لگا تو یوسف بولا، ان میں صرف واردات اور مقتولین کے نام درج ہیں۔ تمام لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہیں اور گھوگلے کی بیوی اور بچوں سے پولیس کو جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں لکھی گئی۔ اخبارات نے اپنی قیاس آرائیوں میں اس واردات کو مخالف گروہوں کا کام لکھا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ یا تو جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے بقیہ ساتھیوں کے ہمراہ کسی ایسی جگہ قیام کریں جس کا ظاہری طور پر اس دھندے والوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مستان نے ایک بڑی حماقت یہ کی ہے کہ غنی میمن کو آپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ غنی میمن نے آپ سے جوہو بنگلے میں ملنے سے پہلے ہی مجھے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مستان کے بلاوے پر وہاں جا رہا ہے اور مستان نے اسے کہا ہے کہ وہ غنی سے اس شخصیت کو ملائے گا جس نے گوگلے کے گروہ کو ختم کیا ہے۔ اب اسلحہ مجھ سے لے کر گئے تھے، لیکن میں نے غنی یا کسی اور سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، صرف مستان کو بتایا تھا تاکہ اب کسی مشکل میں نہ پھنسے۔ یہ کہہ کر پٹیل خاموش ہو گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ میں نے کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ یوسف پٹیل نے جو کچھ بھی کہا وہ مستان کی مخالفت میں نہیں تھا بلکہ میری حفاظت کے لیے تھا۔ گوکھلے کے گروہ کا خاتمہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا جسے بھارتی حکومت اور پولیس نظر انداز کر دیتی۔ حکومت تو گوکھلے اور اس کے گروہ کی سرپرستی کر رہی تھی۔ اگر اس کے گروہ کے بجائے اتنے عام لوگ بھی مارے جاتے تو صوبائی اور مرکزی حکومت، پولیس اور خفیہ ایجنسیاں فوراً حرکت میں آ جاتی۔ میں نے حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا تو صورتحال نہایت گھمبیر دکھائی دی۔ بچنے کی کوئی فول پروف صورت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسی جگہ شفٹ ہونا جہاں کسی زیر زمین گروہ سے تعلق نہ ہو بہت ضروری تھا۔ میں نے پٹیل سے پوچھا، کیا تم واقعی کسی محفوظ جگہ کا انتظام کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، یوں تو بہت سی جگہیں ہیں جن کے مالکان کا نہ ہمارے دھندے سے واسطہ ہے اور نہ ہی کسی دوسری سرگرمی سے، لیکن یہ شریف لوگ جب ہم سے فائدہ لیتے ہیں تو قدموں میں سر رکھتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑ جائے تو اپنی مصنوعی شرافت بچانے کے بہانے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اب کے لیے فوری اور محفوظ جگہ YMCA ہے۔ بمبے میں ان کے 3 مردانہ ہاسٹل ہیں اور ان کا جنرل سیکریٹری میرا دوست بھی ہے اور میرے زیر احسان بھی۔ اس کے ذریعے میں اب کے لیے کمرے بک کروا سکتا ہوں، وہاں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں نے لمحے بھر سوچا اور پٹیل کی پیشکش قبول کر لی۔ کھانے کے بعد پٹیل نے مستان کو فون کیا، میں ابھی تمہیں ملنے آ رہا ہوں۔ ادھر میں نے بمبے گیرج میں نمبر 2 کو فون کیا اور کہا، تمام ساتھی 1 گھنٹے میں روانگی کے لیے تیار رہے۔ پٹیل نے دوسرا فون جنرل سیکریٹری کو کیا اور کہا، YMCA کے اندھیری والے ہاسٹل میں 6 کمرے فوراً رابرٹ مائیکل اور اس کے گروپ کے لیے بک کر دو۔ ٹیلی فون نمٹا کر یوسف نے مجھے ساتھ لیا اور ہم مستان کے جوہو والے بنگلے پر پہنچ گئے، اور کھولی سی بحث کے بعد مستان بھی اس بات پر متفق ہو گیا کہ حالات کے پیش نظر ہمیں فوری طور پر کسی محفوظ جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے۔ غرض یہ کہ رات کے 2 بجے تک میں اور میرے ساتھی اپنا سامان اور اسلحہ کاورز میں چھپا کر اندھیری کے YMCA کے کمروں میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے اپنے بارے میں یہ اندراج کروایا کہ ہم دہلی کے اینجل بینڈ والے ہیں اور ایک فلم ساز کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں۔ ہم سب نے اپنے اندراج کرسچین ناموں سے کرایا۔ یوسف پٹیل کا ایک گودام اسی ہوٹل کے قریب واقع تھا جس میں ٹیلی فون بھی موجود تھا۔ مستان اور یوسف نے اپنے 2 آدمی وہاں ہماری حفاظت اور نگرانی کے لیے چھوڑے اور مجھے تاکید کی کہ میں YMCA کے بجائے صرف گودام کے فون سے ہی ان سے رابطہ رکھو۔ مستان نے کہا، آئندہ 2-3 دن میں اسی علاقے میں ایک بنگلے کا انتظام کر دوں گا۔ یہ بنگلہ ایک ایسے بیوپاری کا ہے جس نے بمبے اسٹاک ایکسچینج میں بھاری نقصان اٹھایا۔ وہ اسے بیچنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے ایک بے ضرر دوست کے نام پر یہ خرید لیا ہے۔ میرا بمبے میں اب کوئی کام نہ تھا، میں جلد از جلد ہرنگھاٹا جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں رکا صرف اس لیے تھا کہ گوکھلے کے گروہ کے خاتمے کے بعد پولیس اور ایجنسیوں کی چیکنگ کم ہو جائے تو ہم بآسانی اور بحفاظت نکل سکے۔ مستان اور یوسف نے مجھے کہا، بغیر ضرورت YMCA سے باہر مت نکلنا،
सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मस्तान भेजेगा और रात का खाना यूसुफ। कोई चारा ना था क्योंकि वाईएमसीए की कैंटीन में तो सिर्फ चाय और बिस्कुट ही मिलते थे। मैं जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इतना थका हुआ था कि वाईएमसीए के पुरसुकून माहौल में 2 दिन के लिए सुकून मिल जाना मेरे लिए गनीमत था। उन 2 दिनों में सुबह अखबारात पढ़ता रहा, साथियों से गुपशप करता रहा और बाहर ना निकला। ये वो 2 दिन थे जो पाकिस्तान से रानिगा माई के लिए निकलने के बाद मुझे पहली बार आराम के नसीब हुए। अखबारात से पता चला कि पाकिस्तान के सियासी हालात बिगड़ चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत डोल रही है। तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका महाज बना लिया है। खैर 2 दिन आराम ही मिला, मगर तीसरे दिन बैक वक्त कई बातें हो गईं। 11 बजे हाजी मस्तान का आदमी आया। हाजी साहिब ने फौरी बुलाया है। मैं फौरन इसके साथ मालाबार हिल्स के बंगले पर गया। मस्तान ने कहा, कैसर का दिल्ली से फ़ोन आया है, वो तुमसे फौरी बात करना चाहता है और अभी दोबारा फ़ोन करेगा। 15 मिनट बाद कैसर का दोबारा फ़ोन आ गया। इसने कहा, सपना आज दोपहर की फ्लाइट से बम्बे वापस आ रही है और मैं भी 2-3 दिन में आ रहा हो। मैं तो जल्द अज जल्द बम्बे से निकलने की सोच में था, लेकिन अब कैसर और सपना की वजह से अपने कयाम को तूल देना पड़ा। इसी रोज़ हम अंधेरी में हाजी मस्तान के नए खरीदे गए बंगले में शिफ्ट हो गए। मस्तान ने हमारी सहूलत के लिए वहाँ मुकम्मल इंतज़ाम किया था। ज़रूरत और आराम की तमाम चीज़ों के साथ साथ 2 ऐसी प्राइवेट कारें भी भेजी गईं जिनके मालिकान का इस काले धंधे वालों से कोई ताल्लुक न था। बंगले में साबिका मालिक के 2 टेलीफोन भी मौजूद थे। मस्तान ने अपने 6 मुहाफिजों और वहीद को भी हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये इसके खुलूस और दोस्ती का एक छोटा सा इजहार था। मेरी इसके साथ कुर्बत अब इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां दोस्त की खातिर जिंदगी की भी कोई वक़्त नहीं रहती। शाम 7 बजे की फ्लाइट पर सपना आ रही थी, जिसे लेने के लिए वहीद गया और उसके पहुंचने के 20 मिनट बाद ही मैंने उसे ड्राइंग रूम में तलब किया और चंद रस्मी बातों के बाद उससे वापस आने की वजह पूछी। मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने गिरदो पेश अनगिनत मुश्किलात और परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रहा हूं और तुमने वापस आकर उनमें मजीद इजाफा कर दिया है। प्रोग्राम के मुताबिक तुमने दिल्ली से कैसर के हमरा दार्जिलिंग जाना था। इस प्रोग्राम में यकायक तब्दीली की क्या वजह है? कैसर खुद भी 1-2 रोज में यहाँ आने वाला है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? सपना भर्राई हुई आंखों से मेरे सवाल और अपनी वापसी पर मेरी बेजारी की बातें सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तब वो ठहरी हुई आवाज में कहने लगी, मैंने दिल्ली जाकर दार्जिलिंग में अपने वालिद के प्रॉपर्टी मैनेजर को फोन किया था। वो हमारा करीबी रिश्तेदार भी है। मैंने उसे बताया कि मैं कल्पना हूँ और मेरे माता पिता इंतहाई नामसाइद हालात में पर लोग सुधार चुके हैं। आपको तो इल्म है कि कई बरस के बाद मैंने दार्जिलिंग वालों से राब्ता किया था। मैनेजर ने मुझे और मेरे माता पिता को पहचानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी को भी नहीं जानता। बरसों की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर इसने हुक्काम से मिली भगत की और हमारी तमाम जायदाद, चाय की खिल्त और कारखाना अपने नाम करवा लिया है। मैंने जब कहा कि मैं दार्जिलिंग आकर कानून का सहारा लूंगी तो इसने जमकी दी कि मेरे पहुंचते ही वो मुझे भी मेरे माता पिता के पास पहुंचा देगा। सपना ने आह भरी और फिर कहा, मैंने ये बात कैसर भाई को बताई तो इसने कहा कि वो चंद दिन में अपने साथियों को इकट्ठा करके मेरे साथ दार्जिलिंग जाएगा और मैनेजर को सीधा करेगा। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही कैसर भाई पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। मी चौंका, क्या हुआ? सपना ने लरसती आवाज में कहा, वो दिल्ली बगैर इत्तला के पहुंचे थे। मैं उनके साथ उनके घर गई। उनकी बीवी घर पर नहीं थी। कैसर भाई के पास अपनी रकम 36 लाख और मरने वाले साथियों के वरसा के लिए 20 लाख रुपए थे। जब उन्होंने अलमारी खोली तो इसमें उनके महल्ले के एक शख्स के 2 मोहब्बत नामे निकल आए जो इसने उनकी बीवी को लिखे थे। कैसर भाई के होश उड़ गए। बीवी के वापस आने पर जब बास पर्स की तो वो मकर गई, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि कैसर भाई बहन के रूप में अपनी महबूबा यानी मुझे घर ले आए हैं। कैसर भाई पहले ही तैश में थे। खुद पर यह झूठा इल्ज़ाम सुनकर उन्होंने कुरान उठाकर अपनी सफाई दी, लेकिन बीवी ने फिर भी कोई माकूल जवाब ना दिया। आखिरकार कैसर भाई ने अपनी वालिदा को 5 लाख रुपए दिए, बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और बच्चों को वालिदा ने संभाल लिया। सपना ने आहिस्तगी से कहा, कैसर भाई बहुत दिल बर्दाश्ता हैं।
ان के घर में मेरा मजीद ठहरना अजीज और अकारिब और महल्ले वालों को शक में डाल देता कि उनकी बीवी ने शोर मचाकर सबको भड़का दिया था। इसीलिए आज उन्होंने आपको फ़ोन किया और मुझे बम्बे रवाना कर दिया। वो खुद भी 1-2 दिन में वर्षा को उनके पैसे देकर और आपके फौजी दोस्त को खत देकर बम्बे आ जाएंगे। मैंने सपना की पूरी बात खामोशी से सुनी। इसकी दास्तान में झूठ का कोई पहलू नजर न आया। मैंने सिर्फ इतना पूछा, बम्बे तो आ गई हो, लेकिन अब आगे के लिए तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं तो महज तुम्हारे और कैसर के इंतजार में यहाँ पड़ा हूँ और जल्द अज जल्द यहाँ से वापस हिरन घाटा जाना चाहता हूँ, जहाँ स्टीम में मेरे साथी रानी, उसका लड़का, रजी की बीवी और स्टीमर का कप्तान मेरा इंतजार करते करते उकता चुके होंगे और कहीं ये ना हो कि मेरी वापसी में ताखीर के बायस कप्तान जहाज को लेकर वापस चिटागांग चला जाए। सपना मेरी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। आंखें झुकाए और साड़ी के पल्लू को उंगलियों पर लपेटते और खोलते हुए वो बोली, मेरे माजी को आप न सिर्फ जानते हैं बल्कि आंखों से भी देख चुके हैं। मेरे साथ जो कुछ भी बीती है इसमें मेरी मर्जी का जरा सा भी अमल दखल न था। हर औरत की जिस्मानी कमजोरी और बेबसी से जिस तरह हवस परस्त अपना मकसद पूरा करते हैं, वैसे ही मैं पहले अपने वालदैन के कातिल सरदार और फिर चकमा के सरदार की हवस की भीड़ चढ़ी। आपको देखा तो मुझे आपकी जात में अपना नजात दहिंदा दिखाई दिया। होटल में आपने कल्पना के बजाय सपना लिखवाया। तो मैंने ये सोचा कि जैसे आपने मेरा नाम बदला है, वैसे ही आप मेरी हर शय और धर्म भी बदलने की कुदरत रखते हैं। आपने मुझे कल्पना से सपना बनाया तो साइरह भी बना सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं इसे अपनी इंतहाई खुश नसीबी समझूंगी। ये कहकर सपना खामोश हो गई। बहुत खोले अल्फाज में वो बहुत कुछ कह गई थी। इसकी आंखें बदस्तूर चुकी हुई थी और हाथ की उंगलियों पर साड़ी का पल्लो लपेटने और खोलने का अमल भी जारी था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी इस अचानक और इंतहाई खिलाफ तवक्को बात का मैं क्या जवाब दूं। अपने घरेलू हालात से मैं इंतहाई दिल बरगश्ता था और मेरी सोच यही थी कि असरनो अपनी नई घरेलू जिंदगी का आगाज करो। सपना हुसैन जवान, पढ़ी लिखी और दिल मुंह लेने वाली शख्सियत की हामिल थी। मेरे जैसे गैर मामूली हालात का शिकार कोई भी शख्स इसकी सियाह और घनी जुल्फों और समंदर की तरह गहरी और खाबीदा आंखों में सुकून हासिल कर सकता था। वो दलेर और साफगो थी, और ये सब खूबियां बैक वक्त बहुत कम औरतों में पाई जाती हैं। मैंने सपना को कहा, तुम्हारी सारी बात का मकसद मैं समझ गया हो। तुम अपनी जिंदगी में सुकून और राहत की मुतलाशी हो, और मेरी जिंदगी में दूर दूर तक उन दोनों का नाम और निशान तक नहीं। तुम मर्दों के जुल्म और सितम और जबर का शिकार बनी रही हो, और मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश के एहतराम को पेश नज़र रखते हुए खुद जहन्नम की आग में कूद पड़ा था, जिसकी हिद्दत से आज तक मैं और मेरी माँ सुलग रहे हैं। मौजूद हालात में मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। किसी वक्त भी दुश्मनों की गोलियां मेरा काम तमाम कर सकती हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो मुझे खोला वक्त सोचने का मौका दो, ताकि हम सोच समझकर ऐसा फैसला करें जिस पर बाद में हम दोनों को पछताना ना पड़े। नई जिंदगी शुरू करने में तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, जबकि मुझे इस मकसद के लिए पहले उन कांटों को हटाना जरूरी है जिनके बाइस मेरा दिल जख्मों से भरा पड़ा है। वो मुझे शब बखैर कहकर अपने कमरे में चली गई। लफ्ज़ शब बखैर गालिबन इसने दहली में सुना था, और मुझे ये कहकर इसने ये जताने की कोशिश की थी कि इसमें खुद को तब्दील करने और मेरी मर्जी के मुताबिक ढालने की कितनी सलाहियत है। अगले रोज बाद दोपहर कैसर भी मुंबई गैरेज होता हुआ बंगले पर पहुंच गया। इसने तफसील से मुझे दिल्ली में पेश आने वाले वाक़यात सुनाए जिनका जिक्र सपना पहले ही कर चुकी थी। अचानक वो जतनी उमंगे, आरज़ुए और मुस्तकबिल की खुशियों के सुहाने सपनों को हकीकत में बदलने का सोचते हुए दिल्ली पहुंचा था। अपनी बीवी के रवैये और इसकी वफा के पर्दे को फटे देखकर वो इतना ही आजुर्दा और गमगीन दिखाई देता था। मैंने इसकी सारी बात सुनकर इससे पूछा कि बीवी को तलाक देने में इसने कहीं कुछ जल्दी तो नहीं की? तो वो बोला, भाईजान, मक्खी को देखते हुए कोई इसे निगल नहीं सकता। मैं तो अपनी बीवी की बेवफाई के सबूत पाकर इसे गोली मारने लगा था, लेकिन ये सोच कर बाज रहा कि इसे और एक किता को मारना बराबर है, और किसी किता को मारकर मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता। अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान जान पर खेल जाता है, लेकिन इसी इज्जत की रखवाली जब शौकिया इज्जत लुटाने लग जाए
तो इससे किनारा कशी ही सबसे बेहतर हल है। माँ और बच्चों के लिए मैं काफ़ी रुपया छोड़ आया हूँ और ये तहैया करके यहाँ आया हूँ कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगा। मैं कर्नल शंकर को आपका खत खुद देकर आया हूँ। जब मैंने खत देते हुए आपका नाम लिया, विनोद चौपला, तो इसने मुझे बैठने को कहा, लेकिन मैंने माजरत करते हुए कहा कि हालात के पेश नज़र ये मुनासिब नहीं है। खत में तमाम तफसील मौजूद है, मैं तो सिर्फ हरकारा हूँ। खत पढ़कर अब जैसे चाही करे। मेरी बात सुनकर इसने भी बैठने पर जोर नहीं दिया। ये खत मैंने कल शाम थले सपना को एयरपोर्ट पर छोड़कर इसे दिया था। कैसर के आने के थोड़ी देर बाद ही सपना भी आकर हमारी बातों में शरीक हो गई और अभी हम तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए ही थे कि मस्तान के पहरेदारों ने मुझे बताया कि यूसुफ पटेल मुझसे फौरी तौर पर हल टॉप होटल में मिलना चाहता है। मैंने कैसर और सपना को साथ लिया और मस्तान की गाड़ी में मेरीन ड्राइव पर हल टॉप होटल पहुंच गए। होटल के बाहर ही यूसुफ पटेल के 2 आदमी खड़े थे। वो हमें होटल के 5वीं फ्लोर पर एक कमरे में ले गए। यूसुफ वहाँ हमारा बेताबी से मुंतज़िर था। कैसर और सपना को मेरे साथ देखकर वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा, क्योंकि ये दोनों तो हिलाई स्टेशन पर इसकी मौजूदगी में दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। मैंने मुख्तसरा इसे बताया कि ये दोनों दिल्ली वापस आ गए हैं और अभी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ ही कुछ अरसा रहेंगे। पटेल ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मुझे अपने निहायत मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि गनी मेमन गोखले के खात्मे के बाद इसकी जगह लेने के लिए तग ओ दो कर रहा है। हमारे धंधे में कारोबारी दोस्तों के मुफाद को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना बेहतर मकाम बनाने की हद तक कोशिश जायज़ समझी जाती है, लेकिन गनी मेमन ने लालच में आकर इस उसूल को फरामोश कर दिया है। मेरे मुखबिरों ने इत्तला दी है कि बम्बे के पुलिस कमिश्नर से इसने अलहदगी में मुलाकात की है। इसके बाद से ही सिविलियन कपड़ों में पुलिस और खुफिया वालों के कारकुन मेरे घर और मस्तान के बम्बे गैरेज और जोहो वाले बंगले की निगरानी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि गोखले के खिलाफ कार्रवाई के मुतालिक इसने हम दोनों और तुम्हारे साथियों के बारे में पुलिस कमिश्नर को बता दिया है। चूंकि ना तो उनके पास कोई ठोस सबूत है और न ही पुलिस के पास कोई ऐनी गवाह, इसलिए पुलिस ने अभी तक अपनी कार्रवाई सिर्फ हमारी निगरानी तक महदूद रखी है। गोखले की बीवी और बच्चों की मदद से तुम्हारे और कैसर के जो खाके बनाए गए हैं वो मैंने पुलिस के एक इंस्पेक्टर से जो हमारे लिए काम करता है ले लिए हैं। ये कहते हुए यूसुफ ने फोटोकॉपी पर बने हुए 2 खाके मेरे सामने रख दिए। दोनों खाकों पर मेरी और कैसर की 80% तक दुरुस्त तस्वीरें बनी हुई थीं और हर खाके पर हमारा रंग, कद, अंदाजन उम्र और हुलिया लिखा हुआ था। यह भी खासी हद तक दुरुस्त था। यूसुफ कहने लगा, इस पुलिस इंस्पेक्टर के बकौल अगर आइंदा 3-4 रोज तक पुलिस डायरेक्ट तुम तक न पहुंच सकी तो फिर इन खाकों को अखबारात में शाया करवा दिया जाएगा। अपना खाका देखकर मैं सोचने लगा कि अगर पुलिस ने अपने गुज़श्ता 2 सालों की रिकॉर्ड की छानबीन की तो इन्हें यकीनन मेरी वो तस्वीरें जरूर मिल जाएंगी जो DMI की हिरासत से फरार होने के बाद अखबारात में शाया कराई गई थीं। पटेल ने मुझे कहा कि अब बेहतर यही है कि मछेरों के रूप में आप लोग घास बंदर से 3 मुख्तलिफ लांचों में बम्बई चले जाएं। मेरे पास इतनी बड़ी लांचें हैं जो आप और आपके साथियों को बहिफाजत कलकत्ते तक पहुंचा सकती हैं। आगे का इंतजाम मस्तान कर देगा।